To this Basics of Math session. My name is Ronak Shah, and in this session we are going to discuss the basics of simple interest and compound interest. So as you know that arithmetic is very important for CAT and other MBA entrance exams, and you will mostly find one or two questions based on simple interest and compound interest in almost all these exams. So that's why it's very much necessary for us to understand this particular topic from basics, and this is what we are going to do. Of course, we are also going to practice some questions, some really good questions, and understand some really important formulae in this session. So please watch this video till the end, and also do not forget to press the like button, and please share it with your friends also. So this is session number 15 as part of this Basics of Math series. In case if you have missed the previous session, please watch it in the playlist. It's available. So these are the concepts that we are going to discuss. It's simple interest versus compound interest. We'll understand that basic difference first of all. Then formulae, some important rules. Installment we will not cover as part of this particular topic, but we will look at some practice questions and of course couple of PYQ. So I'm sure all of you are ready. Can you quickly show me a thumbs up so that we can get going? Yes. In fact, if you're new to my session, guys, this is a bit about myself. Once again, my name is Ronak Shah, and I've completed my MBA, also an engineer, more than 12 years of teaching experience. I have been training students for CAT and other MBA entrance exams in this period, and I've worked with almost all top-notch institutes in the country, and I have personally appeared for CAT many times, and I'm also a digital marketer. Right, so these are the subjects that I teach over here on YouTube channel as well as on Unacademy Learning App. So make sure all of you have subscribed to this channel and also be part of my Telegram group. The link has been provided in description. So let's get going, guys, and let's understand what is this difference. So if I ask you the simple question, what is the difference between SI and CI? What will be your answer? I mean, let me put it in this way. If you are to borrow money, okay, you have some requirement and you want some money, you want to borrow it. So on which scheme will you will you borrow it? Will you borrow it on simple interest or compound interest? Can you quickly type it in the chat box and just quickly show me a thumbs up if all of you are present and answer this question. So first of all, my question is, if you are in need of money, on which scheme will you borrow the money? Will you borrow at simple interest or at compound interest? Come on, quickly answer this question. It's a very simple question. Yes, so I'm sure you will say it should be simple interest because the interest is less in the case of simple interest, isn't that? The interest that we pay is very less compared to compound interest, very less, or you can say less. So why is it so? So the question is, why would you borrow at compound interest, right? There is a scheme called compound interest. So why would people borrow at compound interest? That's the question, right? Pratik is saying CI. Pratik, why would you borrow at CI? Because in CI normally you need to pay more interest, isn't that? You pay more interest in CI. Because I'm sure all of you would have studied this thing during school that in case of compound interest, the interest is calculated on interest, while in the case of simple interest, the principal remains same. The interest is not added to the principal, so definitely the interest is less. Okay. Right, so why would you borrow at compound interest? That's the first question. And why would bank lend at the simple interest, right? SI for loan and CI for banks. Okay, okay. So guys, let's understand this concept because this is a major confusion. Okay, why would I borrow at compound interest? Why is there a scheme of compound interest and simple interest में कम इंटरेस्ट होता है तो सारे कस्टमर सिंपल इंटरेस्ट पे ही लोन लेना प्रेफर करेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो सारे बैंक्स कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही देना प्रेफर करेंगे एंड सो एंड सो फोर्थ. So guys, let's understand that in detail, but before that let me quickly show you my schedule. So I conduct basics of math session every day in the afternoon, and I also conduct PNC, permutation and combination session, in the evening. So keep attending all the sessions for better learning, and you can also attend my session on Unacademy Learning App from 8 to 9 p.m. For example, today I'm going to conduct one session for all CAT 2021 and 22 aspirants, those who have just started their preparation and those who are wondering how should I go ahead about this preparation. So do attend this session, guys. And yes, my plus batches are also there, so you can also join my plus batch. Before I go ahead, guys, a nice contest is coming up. This is a weekly contest that we conduct on Unacademy Learning App.
It's kind of scholarship test, so it is called Unacademy Combat. So you stand a chance to win scholarship, you stand a chance to win Unacademy subscriptions also. So please go for that. And in case if you do not have Unacademy Learning App, then download it and unlock it using my code CHAR10. Okay, some plus batches are also coming up, so you can also think about that. And yeah, some last few days are left for this discount, so go for plus subscription using my code CHAR10 and keep learning, guys. So guys, let's take a simple example to understand the difference between these two schemes, simple interest and compound interest. Okay, in the case of simple interest, if I borrow 1,000 rupees at the rate of 10% for 3 years period, please understand this thing. Yes, hi Muskan and Pratik, everyone pay attention. You know, for the first year the interest will be definitely 10% of 1,000, that is 100 rupees. For the second year also the interest will be once again 10% of 1,000, that is 100 rupees. And for third year also the interest will be calculated on the same principle. Principal means the amount, the sum that I have borrowed. Okay, so it will remain 100 rupees. So at the end of 3 years I'll pay simple interest of 300 rupees and plus principal that I had borrowed 1,000 rupees I'll pay back. So the simple interest plus principal is nothing but amount, and that is total 1,300 rupees that I am paying back to the bank. But if I borrow the same 1,000 rupees at compound interest, which moves the bank gives you at compound interest. Okay, so for first year the interest will be 10% of 1,000, that is 100 rupees. Now at the end of first year this 100 rupees will be added back to the principal, so your principal will become 1,100 rupees. Okay, and for the second year this 10% will be calculated on this 1,100 rupees, so it will come out to be 110 rupees. And yeah, so now the interest for the second year came out to be 110 rupees, which will be added back to the previous principal, which was 1,100. So my new principal will become 1,210 rupees. Now for the third year, this 10% of interest will be calculated on this 1,210 rupees, so it will come out to be 121 rupees. Are you getting this point? So if you look at in compound interest, I am paying a total interest of 331 rupees. Right? And yeah, in the case of simple interest I was paying just 300 rupees interest, but in case of compound interest I'm paying 331 rupees of interest, right? So this is where the question comes, okay, why would I borrow at compound interest? In fact the principal will remain same 1,000 rupees, so total that I'll pay back to the bank, the total amount that I'll pay back to the bank will be 1331. तो आपने यहाँ पे ज्यादा पे किया है, तो आप क्यों ज्यादा पे करोगे? Right, that is the question. Would you like to answer that? Come on guys, if you have any answer for this one, you can type it in the chat box quickly. Yes, Pratik, Muskan and everyone else. Right, so let me tell you guys, you know, when you borrow at simple interest, it is understood that you will pay back the interest as and when it becomes due. Okay, तो जैसे फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट आया 100 रुपीज, यू विल हैव टू गो बैक टू द बैंक एंड यू विल पे दिस 100 रुपीज टू द बैंक. जो भी इंटरेस्ट आपका अक्रू होता है, ड्यू होता है, जमा होता है, वो आप बैंक को पे कर देते हो, राइट? फिर से सेकेंड ईयर में बैंक क्या करेगी, यही 1,000 रुपीज पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी, तो उस पर वापस 100 रुपीज आएगा, वापस बैंक को जाके ये 100 रुपीज पे कर देते हो. सो इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यू पे बैक द इंटरेस्ट एज एंड व्हेन इट बिकम्स ड्यू. बट इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यू नो, आप इंटरेस्ट बैंक को पे नहीं करते हो. इनफैक्ट यू डोंट नीड टू विजिट द बैंक टिल द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. ठीक है, इसलिए बैंक क्या करती है कि फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट आया 100 रुपीज जो आपने बैंक को पे नहीं किया, बैंक उसको एडिशनल बोरोइंग समझ के आपका जो प्रीवियस बोरोइंग था, आपका जो प्रीवियस प्रिंसिपल था, उसमें ऐड कर देती है. क्योंकि आप ये 100 रुपीज बैंक को पे नहीं कर रहे हो, जो इंटरेस्ट जमा हुआ है फर्स्ट ईयर के एंड में वो बैंक को पे नहीं कर रहे हो, इसलिए बैंक उसको एडिशनल बोरोइंग समझ के पुराने प्रिंसिपल में जोड़ देती है. और वो बैंक ऐसा सोचती है कि टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 1100 रुपीज. अब जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस 1100 रुपीज पे होगा. फिर से सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा 110 रुपीज, तो फिर से आप वो बैंक को पे नहीं कर रहे हो, इसलिए वापस बैंक क्या करेगी,
जो 1210 बना देगी प्रिंसिपल, ये 110 को प्रिंसिपल में पुराने प्रिंसिपल में जोड़ दिया, जो टोटल आउटस्टैंडिंग था उसमें जोड़ दिया, और 1210 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी। तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। Once again guys, to make things very simple, in the case of simple interest, आप इंटरेस्ट को टाइमली पे कर देते हो। इन कंपाउंड इंटरेस्ट you don't require to make the timely payment, तो इसलिए सिंपल इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है, बट बीच बीच में जाके पे करना पड़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है, बट आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप लास्ट में 3 साल के एंड में आप पूरा फुल पेमेंट कर दो, राइट। तो इस तरीके से ये बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको समझना है कि प्रैक्टिकली सिंपल इंटरेस्ट कहाँ पे यूज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ पे यूज होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है गाइस। एजुकेशन लोन जब भी आप लोगे, ठीक है, एजुकेशन लोन जब आप लोगे तो उसमें फॉर फर्स्ट 2 years पीरियड जब आपका एजुकेशन चल रहा है तब सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेशन होता है। सपोज आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, 12% पर एनम से आपने 10 लाख का लोन लिया, तो बैंक नॉर्मली मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है। जो एक्चुअल बैंक में कैलकुलेशन होता है वो मंथली बेसिस पे होता है, ऐसे हर साल के एंड में इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है, मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो बैंक क्या करेगी, फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट निकालेगी। तो बताओगे फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट कितना आएगा, 10 लाख का लोन है, 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यस श्रद्धा, रोहित, मुस्कान, प्रतीक, प्लीज टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट कितना आएगा? Yes, Swati. Come on, जल्दी से. What would be the interest for first month? अब ये 1000 रुपीज आएगा 1000 रुपीज नहीं आएगा मेरे दोस्त. What is 1% of 10 lakh? Guys, 1% of 10 lakh. It is going to be 10,000 rupees. Guys, 10,000 रुपीज आएगा, है ना? सिंपल कैलकुलेशन है, डोंट मेक मिस्टेक्स इन काउंटिंग जीरोस. सो गाइस, फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट 10,000 आएगा. पता है आपके पेरेंट्स को ये इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. तो जब तक आपका एजुकेशन खत्म नहीं होता है, जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती है, बैंक तब तक ईएमआई स्टार्ट नहीं करती है. ईएमआई कब स्टार्ट होता है पता है? जैसे ही आपको जॉब मिल जाता है, आपकी जब पहली सैलरी आने वाली होती है तब से आपका ईएमआई शुरू होता है. तो इस तरीके से बैंक का अरेंजमेंट रहता है. याद रखना ये, अब जब भी एजुकेशन लोन के लिए जाओ. इनफैक्ट मैं कुछ चीजें और बता देता हूं. अगर आपको टॉप 30 बी स्कूल में मिलेगा ना, टॉप 20-30 बी स्कूल में मिलेगा, द रेट ऑफ लोन विल बी लोअर. बट अगर आप कोई भी एरे गहरे नथु गहरे बी स्कूल में गए तो रेट ऑफ लोन विल बी स्लाइटली हायर, क्योंकि IIM वाले डिफॉल्ट नहीं करेंगे. 99.9% केस में कोई भी IIM वाला या टॉप बी स्कूल वाले को डिफॉल्ट करने की जरूरत नहीं है. बट बाकी जो ऐसे ही कॉलेज में गए हैं वो बहुत ज्यादा चांस है उनके डिफॉल्ट करने के. आर गेटिंग दिस पॉइंट? इसलिए ये दूसरे कॉलेजेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है और थोड़े नॉर्म्स भी स्ट्रिक्ट होता है. लेकिन अगर आप IIM अहमदाबाद का लेटर लेके चले गए, आपको बिना श्योरिटी, बिना कोई प्रॉब्लम आपको आराम से लोन मिल जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, राइट. सो दैट्स वन थिंग. तो गाइज, आपको जो भी लोन मिलता है, अब इसमें एक और चीज आ जाती है. सपोज 20 लाख रुपए आपका फीस है, अगर टॉप कॉलेज है ना, बैंक आपको 100% तक लोन देगा. 100% तक आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा. लेकिन दूसरा कोई कॉलेज है, भले ही आपने 10 लाख का लोन लिया, तो उसमें से सिर्फ 90% लोन आपका सैंक्शन होगा. 10% आपके पेरेंट्स को पे करना ही पड़ेगा. मतलब 10 लाख है तो 1 लाख आपके पेरेंट्स को वो खर्चा उठाना पड़ेगा, बाकी का 9 लाख बैंक आपको लोन दे देगी, राइट. क्यों ये बैंक ऐसा करती है? दे जस्ट वांट टू चेक वेदर द पेरेंट्स हैव द पेइंग कैपेसिटी और नॉट. क्या वो 1 लाख रुपए पे कर पाते हैं? तो ये देखने के लिए वो थोड़ा सा 10% पेरेंट्स से ले ही लेती है स्टार्टिंग में. ओके, तो इस तरीके का पूरा अरेंजमेंट रहता है. तो गाइज, यहाँ पे फर्स्ट मंथ का आया 10,000, आपके पेरेंट्स के अकाउंट से हर महीने 10,000 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे जब तक आपका एजुकेशन खत्म नहीं होता है. ऐसा क्यों करते हैं वो? ताकि 2 साल के बाद जैसे ही आपका एजुकेशन खत्म हुआ तब भी आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो 10 लाख ही रहे, वो बढ़ ना जाए, इसलिए वो ऐसे करते हैं. सो दिस इज नथिंग बट अ केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. उसकी जगह पे जो बिल्डर वगैरह लोन लेते हैं वो टर्म लोन्स जिसको कहते हैं, टर्म लोन्स जो होते हैं उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है. क्योंकि बिल्डर ने एक लोन लिया, सपोज 50 करोड़ का लोन लिया. नाउ बिल्डर वुड नॉट बी एबल टू पे इवन द इंटरेस्ट अनलेस ऑल द फ्लैट्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड सोल्ड.
So builder would like to make the full lump sum payment along with the interest towards the end of the project, right? तो वहां पे compound interest आ जाते हैं. They don't mind paying some extra interest. So Rohit Singh is saying, sir, ये सर कुछ कॉलेजेस जो बैंक का लिस्ट में होते हैं उनमें रेट कम होता है. अरे भाई, हर एक बैंक कंपनीज के पास में एक लिस्ट तैयार रहता है. सिर्फ आप ही नहीं हो जो टॉप 10 कौन से कॉलेज है, टॉप 20 कौन से कॉलेज है, इसको देखते हैं. बैंक भी कंटिन्यूअसली वो कॉलेज के प्लेसमेंट रिपोर्ट और उनके रेपुटेशन को ट्रैक करते हैं. सेम वे कंपनीज भी करते हैं. आई विल शेयर अ स्मॉल एग्जांपल. सो अगर आप जैसे इन्फोसिस जैसी कंपनी ले लेते हो, एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं. सपोज मैं इन्फोसिस ले लेता हूं या मैं टीसीएस ले लेता हूं या कोई भी दूसरी कंपनी ले लो. ये सारे कंपनी में वो लोग टॉप बी स्कूल से भी हायर करते हैं, टॉप बी स्कूल से भी हायर करते हैं एंड लोअर बी स्कूल से भी हायर करते हैं, क्योंकि उनको हर एक टाइप के लोग चाहिए. उनको असिस्टेंट लेवल पे भी लोग चाहिए और उनको सीनियर मैनेजमेंट के लिए भी लोग चाहिए, सीनियर मैनेजमेंट के लिए फ्यूचर में जाके. तो जो क्रिटिकल वर्क है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन वाले जो काम होते हैं वो टॉप बी स्कूल के लोगों को दिए जाते हैं. 22 साल का बंदा है, उसने इन्फोसिस ज्वाइन किया पर वो टॉप बी स्कूल से, उसकी सैलरी होगी सपोज 14 लाख, राइट. लोअर बी स्कूल से वही एज के बंदे को रिक्रूट किया, उन्होंने सैलरी दे दी 6 लाख या 7 लाख. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इतना डिफरेंस रहता है. काफी बार तो मैंने ये भी देखा है कि दोनों ये लोग जो ज्वाइन हुए वो दोनों काम सेम ही कर रहे हैं बट सैलरी में इतना ज्यादा डिफरेंस है ना. सो अभी आप सबको समझ में आ गया होगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू गेट इनटू गुड बी स्कूल गाइस. यस एवरीवन, या चलो तो हम आगे बढ़ते हैं. आर यू ऑल क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप दिखा दो. आज काफी लोग बहुत लेट ज्वाइन करे हैं गाइस, क्या हो गया है? मतलब सेशन हमारा 2 बजे है, आप 2:15 बजे ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा क्यों? वाई नॉट 2 o'clock? ठीक है. सो ज्वाइन ऑन टाइम सो दैट यू कैन यू डू नॉट मिस एनीथिंग, राइट एवरीवन? ग्रेट. चलो यस, तो गाइज हमने दोनों में कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है. अच्छा, एक और चीज बता देता हूं. अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से सुनना. ये जो आप इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करते हो ना, ये जो हम इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करते हैं, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड, सॉरी, ये जो इंटरेस्ट को हमने प्रिंसिपल में ऐड किया, दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग. दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग क्या होता है? एडिंग इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल. दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल इज कॉल्ड कंपाउंडिंग. ये जो मैंने एग्जांपल लिया था, इसमें मैं इंटरेस्ट कब ऐड कर रहा था प्रिंसिपल में? कैन आई से हर साल के एंड में ऐड कर रहा था. सो दिस इज कॉल्ड एनुअल कंपाउंडिंग. सेम वे हाफ ईयरली कंपाउंडिंग भी हो सकता है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग भी हो सकता है, और रियल टाइम में जो बैंक करती है वो मंथली कंपाउंडिंग होता है. हर महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है और उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देती है अगर आपने उससे लोन लिया है तो. क्या ये समझ में आ रहा है? सो कंपाउंडिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ एडिंग इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल. सो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट में तो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, PRT/100 या PRN/100 को, जो भी है सबको पता है. कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसमें अगर कंपाउंडिंग एन्युअली हो रहा है तो फॉर्मूला आएगा अमाउंट. अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट. सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 होल रेज़ टू n. बट उसकी जगह पे अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, मतलब 6 महीने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, और क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा. क्या ये ध्यान में रहेगा? आपके एग्जाम्स में सिर्फ यही 3 टाइप के कंपाउंडिंग आते हैं, एन्युअल, हाफ ईयरली या क्वार्टरली. ठीक है, आपको मंथली कंपाउंडिंग नहीं पूछेंगे, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. इज इट क्लियर? शो मी अ थम्स अप इफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वंस अगेन. राइट, चलो सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद द क्वेश्चन. प्लीज टेल मी द आंसर फॉर दिस. वेरी सिंपल क्वेश्चन. जल्दी से आंसर टाइप करो. It should not take more than 45 seconds for you to solve this. Do not use calculator. Calculator use मत करना. ओह, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग जो होता है वो आपके कैट में नहीं है. पहले वो जब आप एमबीए कर रहे हो उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएगा. अगर आपने बीबीए किया हुआ है तो उसमें आएगा.
बट कैट में कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग नहीं आता है क्योंकि उसमें वो ई वाला फॉर्मूला आ जाता है, मैथमेटिकल कांस्टेंट ई लगता है, तो उसकी आपको यहां पे कोई जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर अवयव? बट कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग मतलब उसमें हर सेकंड का इंटरेस्ट निकालते हो और उसको ऐड करते हो, आप ऐसे समझ लो, हर सेकंड का इंटरेस्ट निकलता है और उसको ऐड करते हो। बट एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग और मंथली कंपाउंडिंग और कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अगर 1,000 रुपए पे 10% से साल का अगर ईयरली कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट आपका आ रहा है 100 रुपीज या 3 साल का आ रहा है 331, तो आप क्वार्टरली कंपाउंडिंग देखोगे तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा आएगा और कंटिन्यूअस में और थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं कि डबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड शी इन्वेस्ट द अमाउंट टू डबल हर सम? देखो अगर मैंने x रुपीज इन्वेस्ट किए तो मुझे कितना करना है, उसको 2x करना है, डबल करना है ना, मतलब इंटरेस्ट कितना ऐड होना चाहिए, x रुपीज का इंटरेस्ट चाहिए, x पे x रुपीज का इंटरेस्ट मतलब 100% मुझे इंटरेस्ट चाहिए, 100% मुझे इंटरेस्ट चाहिए। एक साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 4%, तो 100% के लिए कितने साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे कि नहीं दोस्तों, 25 ईयर्स लगेगा कि नहीं। अमाउंट प्रिंसिपल आपने कुछ भी इन्वेस्ट किया हो, करेक्ट आंसर आपका 25 साल ही आएगा, राइट गाइज। एक साल में 4% है तो 25 साल में 100% हो जाएगा। 100% इंटरेस्ट मिलना मतलब डबल हो जाना, 200% इंटरेस्ट ऐड करोगे तो वो कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, एंड सो एंड सो फोर्थ। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस, ग्रेट। चलो, so guys let's look at one more question, please try for this। थोड़ा सा सोचो, आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर आपने ये क्वेश्चन कर लिए, फिर आप कोई भी बुक से लेवल 1 के थोड़े से क्वेश्चन कर लो, लेवल 2 पे मत जाना, लेवल 1 के कुछ क्वेश्चन कर लो, ट्रस्ट मी आपके बेसिक्स अच्छे हो गए। फिर आप मेरे दूसरे सेशंस जो होते हैं इवनिंग वाले सेशन में मैं एडवांस लेवल पढ़ाता हूं, जैसे अभी पीएनसी पढ़ा रहा हूं, फिर आगे ज्योमेट्री, नंबर्स, अरिथमेटिक, ये सारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पर्सन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी इन अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट, he observed that his amount has grown to 1500 at the end of third year and 1900 at the end of fifth year, right? क्या आंसर आएगा? आपको एक चीज पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यहां पे जो है। आफ्टर 3 इयर्स उसका अमाउंट कितना हो जाता है, 1500, ठीक है। 1500 3 इयर्स के बाद, तो उसमें प्रिंसिपल P होगा और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, से x ले लेते हैं, 1 साल का 3x हो गया, ओके। एंड आफ्टर 5 इयर्स उसका कितना हो गया, 1900, तो उसमें प्रिंसिपल तो P ही रहेगा लेकिन सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का हो जाएगा। सो कैन आई से ये जो डिफरेंस है 1500 और 1900 में जो डिफरेंस है 400 का, दिस 400 डिफरेंस इज नथिंग बट 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 2x, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट SI फॉर 1 ईयर, SI फॉर 1 ईयर। Yes, guys, the answer will be option B. Avyav, that's correct. क्या यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया कि 1500 रुपए आपका 3 साल का अमाउंट है, मतलब उसमें प्रिंसिपल P है और 3 साल का इंटरेस्ट 3x है।
1900 आपका 5 साल का अमाउंट है, तो उसमें प्रिंसिपल तो पी ही रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट आपका 5 साल का है। तो ये जो डिफरेंस है 400 रुपए का, वो 2 साल के इंटरेस्ट के बराबर है, तो 1 साल का इंटरेस्ट आपको मिल गया 200 रुपए, राइट एवरीवन। तो कैन आई से माय प्रिंसिपल इज नथिंग बट 1500 माइनस 3x विच इज नथिंग बट 900। तो मेरा प्रिंसिपल कितना मिल गया 900, उस पर मुझे 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 200। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग बट इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इन 200। तो ये आपको पता है 18.18% आएगा, क्योंकि 18.18 नहीं आएगा गाइस, 22.22% आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक। 1/9 इज 11.11%, तो 2/9 कितना होगा 22.22% होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या ये सबको समझ में आया? जल्दी से दिखाओ मुझे, थम्स अप दिखाओ, कम ऑन। यस, ग्रेट। यस, ऋतुजा, स्वाति, अवयव, साइली, रोहित, मुस्कान, पार्थ, ग्रेट। कम ऑन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। चलो, प्लीज ट्राई फॉर दिस एवरीवन। आप आज के सेशन के क्वेश्चन कर लो, मैं आपको कुछ 12 क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। इन नेक्स्ट 30 मिनट्स हम कुछ 12-13 क्वेश्चन करेंगे, 4-5 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। आप इतने क्वेश्चन कर लो एंड ट्रस्ट मी, आप पिछले 4-5 साल के कैट के पेपर देखो, पिछले 4-5 साल के कैट के पेपर देखो, कम से कम उसमें अगर 5-6 क्वेश्चन हो गए, उसमें से 2 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे सॉल्व हो जाएंगे, बट 2 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। जस्ट इमेजिन विद द अंडरस्टैंडिंग टू बेसिक्स। So what I'm trying to tell you is guys, cracking CAT is actually very simple. You try to be very thorough with the basics. अब बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व मत करो, लेकिन आप ये समझो कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, क्यों हम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करते हैं, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एन्युअली क्या होता है, ये समझो। अगर ये आपने समझ लिया, फिर आप खुद से ही आपका माइंड सोचेगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। रट्टा मारोगे आंख बंद करके तो नहीं चलेगा। मुस्कान, रोहित, व्हाट इज 900? रोहित, 900 कहां पे है? प्रिंसिपल था प्रीवियस क्वेश्चन में, इट वाज प्रिंसिपल। 1500 रुपए आपका अमाउंट था, ठीक है रोहित, 1500 रुपए आपका अमाउंट था। पहले तो चेक करो रोहित, आर यू लाइव? जस्ट टच योर स्क्रीन एंड चेक दैट रेड डॉट बिसाइड लाइव बटन, इज इट रेड? आप काफी टाइम बाद मुझे सवाल पूछ रहे हो, ठीक है। यस गाइस, 6655। अब इसको करने के 2-3 तरीके हैं। आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आप फॉर्मूला यूज करो कि आपको पूछा है फाइंड द अमाउंट दैट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 3 years। ध्यान से सुनना अभी। There are 2 ways and you decide which is simple guys। जरूरी नहीं है हर बार फॉर्मूला सिंपल ही हो। सो यहां पे मैं पहले फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बताता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल कैलकुलेशन एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फाइंड नॉर्मल कैलकुलेशन इजियर इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूले में क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r अपॉन 100 होल रेज टू 3। सो आपको ये पता ही होना चाहिए 10% 3 साल का इंटरेस्ट है तो वो 1.1331 ही आएगा, 1.331 ही आएगा, क्योंकि 11 का क्यूब होता है गाइस, 11 का क्यूब होता है 1331, तो 1.1 का क्यूब हो जाएगा 1.331। तो ये सीधा पता होना चाहिए। सो दिस वैल्यू विल बी 1.331 इंटू 500, करेक्ट। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 6655, राइट। ओके, यस, फाइन। सो गाइज प्लीज क्विकली डू दिस थिंग। यस, एंड कैलकुलेशन से आप कैसे करोगे? आई थिंक देर इज सम स्पैमर।
ठीक है, abusive spammer. So we need to get rid of him, guys. Just give me a second. Just a second. You please try to solve this next question. We'll try to do it. Just a second. Can you please stop that thing? हेलो, हाँ वो जरा मेरे सेशन में देखो ना. हेलो, चैट, हाँ चैट देखो मेरे सेशन का जल्दी से. अरे भाई ये गालियां लिख रहा है यार, क्या कर रहे हो? Okay, everyone, let's continue. Chalo. So let me show you normal calculation and where can we use normal calculation. You know, so instead of this 10%, guys, had it been 5%. Everyone, are you with me? Just show me a thumbs up quickly. Just show me a thumbs up. Yeah, all those who are there, just show me a thumbs up, guys, if you can hear me. Right, great. Yes, yes. Chalo, let's ignore. So we understand pappus are there everywhere. Even in parliament, even in Ronak Shah's session, you find pappus everywhere, and they really speak nonsense, right? Guys. Yeah, hi Ankit. Okay. So guys, let's continue quickly. So what I was showing is कि जैसे यहाँ पे 10% है तो आपने 1.331 से multiply कर दिया. But what if there is a 5% or there is something like 15%? So in that case, you will have to find out cube of 1.15, and that will be slightly difficult. So in that case, what you can do is you can just go by normal calculation. You know, first year interest and then amount. So interest will be 10% of 5,000, that is 500. Then your amount will become 5,000 plus 500. ये सब माइंड में होना चाहिए, that is 5,500. फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या आएगा? सो आप इसके ऊपर 10% कैलकुलेट करोगे, 550. इसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 6050 आ जाएगा. फिर इसके ऊपर आप थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 605, राइट? बस दैट्स इट. ये टोटल आपका इंटरेस्ट कितना आ गया? तो ये टोटल आपका इंटरेस्ट आ गया 1655, करेक्ट? ये इंटरेस्ट को आप प्रिंसिपल में ऐड कर दो, सो आपको मिल जाएगा टोटल 6655, राइट? हाय ललित, गुड आफ्टरनून एवरीवन. हैव यू अंडरस्टूड? सो यू कैन ऑल्सो डू इट बाय स्टेप, राइट? है ना?
ग्रेट, चलो yeah, so guys, please try for this question once again. Please try for this question, everyone. Yeah, just ignore guys, matlab there are some cowards, so you can't do anything about them. Yes, so it should be, definitely it should be can't be determined, right everyone? It should be, just a moment, huh? Yeah, so it will be can't be determined, right? Because there will be many cases. आपको क्या पूछा है? Certain amount earns a simple interest of this much after 7 years. Had the interest been 2% more, how much more interest would it have earned? तो आपको rate of interest भी नहीं पता है, principal भी नहीं पता है. So there can be many values. Absolutely correct. Great. Let's go ahead. So guys, just for your information, there is something called Iconic Subscription also, where you get guidance from the top B school mentors. आपको personal coach मिलता है, so you can also explore that. Whenever you go for subscription, do not forget to use my code, that is SHA10. Now let's take a very nice question, very conceptual question. Please look at this. ₹1000 invested at SI in bank A becomes double in 5 years. ठीक है, it becomes double in 5 years. In how many years will it become 8 times? Guys, 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे ये डबल हो रहा है, राइट? सो वो 8 टाइम्स होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? देखो, मैंने x रुपीज इन्वेस्ट किए, ये सिंपल इंटरेस्ट पे है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का केस है. तो उसमें 5 साल के बाद मुझे बताया गया ये 2x हो गया, तो कितने साल में वो 8x होगा ये पूछा है. प्लीज टेल मी. एंड आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताना है. सो अवयव इज सेइंग 35 years. Why 35 years, Avyav? Can you explain the logic? Why 35 years? Come on. And everyone else, please tell me your answer and type it in the chat box. Saili is saying 20. Okay, yes Avyav, that logic is correct. So guys, please understand. See, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया और 5 साल में वो 2000 हो गया, तो मतलब 5 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 1000 रुपीज का इंटरेस्ट हुआ. दिस इज नथिंग बट योर इंटरेस्ट इन 5 years. तो हर 5 साल में आपको 1000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलने वाला है.
हर 5 साल में आपको 1000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलने वाला है, राइट। अब मुझे कितना करना है, 8 टाइम्स करना है, 1000 को मुझे 8000 करना है ना। तो मुझे इंटरेस्ट कितना ऐड करना पड़ेगा, 7000 का इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। 1000 के इंटरेस्ट के लिए 5 साल लगे, तो 7000 के इंटरेस्ट के लिए कितने साल लगेंगे, 35 ईयर्स लगेंगे कि नहीं। यू ऑल अग्री विद दिस एवरीवन, 35 ईयर्स लगेंगे। ओके अब यहां पे एक और चीज समझते हैं, 1000 पे आपको 1000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, मतलब कहना से 100% इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट इज 100% इन हाउ मेनी ईयर्स, 5 ईयर्स। सो इन 5 ईयर्स यू गॉट 100% इंटरेस्ट। सो इन 1 ईयर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 20% मिलेगा कि नहीं। सो दैट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 20%। एंड यहां पे कितने साल में 8 टाइम्स बनेगा, 35 ईयर्स। ये दो आपको आंसर मिल गए। क्या सबको ये समझ में आया कैसे हमने किया। ये समरजीत और अवयव ने तो सही लिखा था, बट व्हाट अबाउट अदर्स, एवरीवन एल्स, प्लीज शो मी अ थम्स अप अगर आप सबको ये समझ में आया ये क्वेश्चन। यू नो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज पार्ट ऑफ बेसिक्स कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। 5 साल का इंटरेस्ट अगर 1000 है तो हर 5 साल का इंटरेस्ट 1000 ही रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, पहले 5 साल का 1000 होगा तो दूसरे 5 साल का 1000 नहीं रहेगा, क्योंकि आपका प्रिंसिपल चेंज हो जाता है तो इंटरेस्ट भी चेंज होता रहेगा। करेक्ट, एक्सीलेंट। चलो तो अभी हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब ये जरा समझो और इसका आंसर करो। यहां पे ऐसा लिखा है कि आपने x रुपीज इन्वेस्ट किए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, नाउ दिस इज एट CI, और 5 साल में वो 2x हो गया आपका, तो कितने साल में वो 8x होगा। अब क्या करोगे, अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो क्या करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में तो आपने बता दिया कि ये 35 ईयर्स में हो जाएगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे करेंगे। सो रोहित इज सेइंग 20 ईयर्स। रोहित 20 ईयर्स नहीं आएगा, थोड़ा सोचो। गाइस इट वॉन्ट बी 20 ईयर्स। नहीं गाइस 20 ईयर्स भी नहीं आएगा, 10 ईयर्स भी नहीं आएगा, ठीक है। नो चलो अभी मैं समझाता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना मुझे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग केयरफुली। गाइस सिंपल इंटरेस्ट में एडिशन जो होता है, जितना ऐड हो रहा है सेम पीरियड में, 5 साल में 1000 रुपए ऐड हुए तो वो 1000 रुपए ही ऐड होते रहेंगे, तो 8 साल में 7000 रुपए ऐड हो गए, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर 5 साल में ये डबल हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो हर 5 साल में वो 2 से मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है। तो यहां पे और 5 साल के बाद 2x का 4x हो जाएगा, एंड और 5 साल के बाद वो 4x का 8x हो जाएगा। तो आपको याद ये रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट केस में एडिशन पार्ट सेम रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में मल्टीप्लीकेशन पार्ट सेम रहेगा। क्या इतना याद रख सकते हो। आई रिपीट, सिंपल इंटरेस्ट के केस में एडिशन पार्ट सेम रहेगा फॉर द सेम पीरियड, मतलब 5 साल में अगर 1000 रुपए ऐड हुए एज एन इंटरेस्ट, तो हर 5 साल में इंटरेस्ट 1000 रुपए ऐड होता रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीप्लिकेशन पार्ट सेम रहेगा, मतलब 5 साल में दुगना हुआ तो हर 5 साल में दुगना होता रहेगा। अभी क्लियर।
यस, शो मी अ थम्स अप। और ये समझना बहुत ही सिंपल है। देखो अगर 10% पे हमने इन्वेस्ट किया था जब, तो हम क्या कर रहे थे, 1 पॉइंट प्रिंसिपल को 1.1 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब आप ऐसे कह रहे हो कि हर साल प्रिंसिपल आपका 1 पॉइंट, जो अमाउंट बन रहा है वो आपका 1.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले साल में 1.1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो दूसरे साल में भी 1.1 से मल्टीप्लाई हुआ, तीसरे साल में भी 1.1 से मल्टीप्लाई हुआ। तो आप सीधा समझ सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में दिस मल्टीप्लीकेशन पार्ट विल रिमेन सेम। इज दैट क्लियर? बस ये समझ में आ गया तो आपका हो गया। बट यस, एक चीज मुझे बताओ, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइस? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? यहां पे ये भी तो पूछा है ना, ये कैसे निकालेंगे? अगर मैं नॉर्मल तरीके से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने गया तो कुछ ऐसे करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना? कुछ इस तरीके से निकालना पड़ेगा कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू एन। यहां पे ये 2x हो रहा है, अमाउंट आपका 2x हो रहा है, प्रिंसिपल x था, 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू 5। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये x तो कैंसिल हो जाएगा, मुझे दोनों तरफ फिफ्थ रूट लेना पड़ेगा। दोनों तरफ मुझे फिफ्थ रूट लेना पड़ेगा। अब ये फिफ्थ रूट फाइंड करना आसान है? नहीं। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आता है हाँ एक और स्पैमर, राइट। ओके ठीक है, इनको गाइस लेट देम डू इट। ठीक है, यहां पे अगर आपको ये फाइंड करना है, यहां पे अगर आपको ये फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका शॉर्टकट है रूल ऑफ 72 एवरीवन। तो इसके लिए आप रूल ऑफ 72 यूज करोगे। ठीक है, अब रूल ऑफ 72 क्या कहता है? इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, years to become double at CI is equal to 72 upon interest rate। 72 upon interest rate, as simple as that। मतलब यहां पे कितने साल में डबल हो रहा है? 5 साल में, और हमें इंटरेस्ट रेट निकालना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 72 upon years to become double, where n is the years to become double। ठीक है, सो यहां पे कितना आ जाएगा, 72 डिवाइड बाई 5। सो ये अच्छा, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होता है, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होता है 14.4%। क्या ये सबको समझ में आया? यस गाइस, यस रोहित, इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो अगर आपको ये बताया कि 4 साल में डबल हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 18%। आप चाहो कैलकुलेटर में चेक करके देख लो, अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा। तो हमें तो उसकी जरूरत है, राइट? सो ये पॉइंट नोट कर लेना। ओके, सो गाइज, इन केस इफ यू आर न्यू टू माय सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। द लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन एंड कीप लर्निंग। दिस आर द टाइमिंग्स। आज शाम को 8 बजे एक सेशन हो रहा है, स्ट्रेटेजी सेशन, पर्टिकुलरली फॉर दोज जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, जो समझना चाहते हैं कि क्या मेरा प्लान होना चाहिए। मैंने जस्ट शुरू किया है, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे जस्ट बेसिक्स ऑफ मैथ्स के सेशन अटेंड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सर हम अभी बेसिक्स की ही आपके वीडियो देख रहे हैं, तो आगे हमारा प्लान क्या होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग ओवर देयर, प्लीज अटेंड दैट, राइट? यू कैन ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स। ठीक है, फाइन गाइज, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। If difference between SI and CI for the same principal after 2 years is 10% per annum, at 10% per annum is rupees 15, find the principal invested in each scheme। तो इसको अगर कॉन्सेप्चुअली हमें समझना है, ठीक है, इसको अगर हमें कॉन्सेप्चुअली समझना है, तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं प्रिंसिपल 1000 ले लेता हूं एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं 5% ले लेता हूं, 5% पर एनम ले लेता हूं। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होगा, ठीक है, या फिर मैं 10% ले लेता हूं, 10% पर एनम ले लेता हूं। अगर सिंपल इंटरेस्ट में लिया और कंपाउंड इंटरेस्ट में लिया, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट दोनों में कितना आएगा? 100 ही आएगा। बट आप क्या करते हो, ये 100 को आप प्रिंसिपल में ऐड कर देते हो, तो आपका नया प्रिंसिपल बन गया 1100। और सेकंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो आपका 100 ही आता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? 110। तो ये 200 आया और ये 210 आया। व्हाट इज दिस डिफरेंस? कैन आई से डिफरेंस इज 10 रुपीज? डिफरेंस इज 10 रुपीज।
Now what is this 10 rupees? 10 rupees is nothing but 10% of your first year interest. And what is first year's interest? It's 10% of your principal. क्या ये समझ में आ रहा है ना? तो can I say, सुनो ध्यान से, can I say this is nothing but, this difference is nothing but 10% of my first year's interest. तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10% इज 15, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 150 रुपीज. एंड दिस इज नथिंग बट 10% ऑफ माई प्रिंसिपल. दिस इज नथिंग बट 10% ऑफ प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा कि नहीं? क्या ये समझ में आया? ये जो डिफरेंस होता है दैट्स द 10% ऑफ फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट. तो आपको अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, डिफरेंस पता है, तो आप फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हो 150. और आपको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिल गया तो दैट इज नथिंग बट 10% ऑफ द प्रिंसिपल. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मिल गया 1500. क्या ये लॉजिक समझ में आया सबको? तो इतना सारा करने की जगह पे देयर इज अ शॉर्टकट, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दिस. आपको इतना सारा नहीं सोचना है, तो एक फॉर्मूला है एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट यू कैन यूज फॉर 2 years एंड फॉर 3 years. दोनों फॉर्मूले मैंने यहां पे लिखे हुए हैं. So please note down this formula and please remember that. This would be really helpful. So as far as the basics of maths, simple interest, compound interest is concerned, this is what we had to discuss. Okay, I hope all of you would have understood this thing and you would have enjoyed this session. Hi Deepak. So in case if you want to continue learning, you can join me for 6 PM session also, and then do not forget to join today's 8 PM session on Unacademy Learning App. अगर आपके पास Unacademy Learning App नहीं है तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, एंड अनलॉक करने के लिए आप ये कोड यूज करना SHAR10. ठीक है? सो गाइस दैट्स इट. कीप लर्निंग विथ मी, राइट? प्लस सब्सक्रिप्शन आपको पता ही है. आप कोई और कोर्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अनअकैडमी पे, जैसे बैंक पीओ हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी, जो जिसके लिए भी चाहते हो, यू कैन स्टिल यूज माई कोड SHAR10. सो प्लीज रिफर योर फ्रेंड्स अबाउट दिस, एंड या दैट्स इट एज फार एज दिस सेशन इज कंसर्न. कीप लर्निंग गाइस. बाय, टेक केयर.